میں اس کی جگہ لیٹ گیا اور چینا کے ساتھ کوئی حرکت مت کرنا، ممکن ہے وہ بعد میں ہمارے کام آئے۔ فکر مت کرو، میں اس کی عزت پر حملہ نہیں کروں گا، اس نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے، اگر وہ راضی خوشی ہو تو بے شک تم حملہ کر سکتے ہو، میرا مطلب ہے اسے قتل وغیرہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ابھی میں پاگل نہیں ہوا ہوں، اس وقت ذرا جذباتی ہو گیا تھا، جان گرے نے خفا ہو کر کہا۔ جب سے تم نے مس چینا کو دیکھا ہے عقل سے کم ہی کام لے رہے ہو، اس کی جگہ جذبات کا استعمال زیادہ کر رہے ہو۔ جان گرے اٹھ کر کرسی پر جا بیٹھا۔ روشنی کے لیے ہم نے ایک کیروسین لیمپ چلا کر اسے میز کے نیچے رکھ دیا تھا تاکہ اس کی روشنی کم سے کم پھیلے۔ کھڑکیوں پر پردے تھے، اس کے باوجود ہم احتیاط کر رہے تھے۔ میں تھکن محسوس کر رہا تھا، اس لیے جلد نیند آ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے میں سونے کے معاملے میں پہلے جیسا نہیں رہا تھا کہ جب چاہا سو گیا۔ اب مجھے ذرا مشکل سے نیند آتی تھی اور خواب بھی پریشان کرتے تھے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ جان گرے کے دشمن کیبن تک آ گئے ہیں اور ہمیں باہر آنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اچانک جینا جان گرے سے اس کے رائفل چھین کر اسے شوٹ کر دیتی ہے اور جان گرے ایک حسرت بھری ہچکی لے کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور اب جینا مجھے وارننگ دے رہی تھی کہ اگر میں نے اس کے التفات کا جواب نہیں دیا تو وہ مجھے بھی جان گرے کے پاس بھیج دے گی۔ میں پرعزم لہجے میں کہتا ہوں کہ وہ بے شک مجھے گولی مار دے، لیکن میں کاجل کے لیے مخصوص محبت کا ایک ذرہ سا حصہ بھی کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ اس پر فوج شدہ جان گرے نے آنکھ کھول کر دریافت کیا، یہ کاجل کون ہے؟ میں اس مذہب کا خیز سچویشن پر حیران تھا کہ کسی نے مجھے چھنچوڑ دیا۔ یہ کاجل کون ہے؟ کون ہے؟ میں بڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ جان گرے تھا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کاجل کون ہے جس کا نام تم اتنے زور و شور سے لے رہے تھے؟ جان گرے مانی خیز انداز میں مسکرایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ کسے دھوکہ دے رہے ہو برخودار۔ میرے اٹھتے ہی مجھے ماحول میں ایک تبدیلی نظر آئی تھی جو جان گرے نے نوٹ کر لی۔ جینا وہ رہی، خم میں صلح ہو چکی ہے۔ میں نے جینا کی طرف دیکھا تو صلح کی نوعیت بھی سمجھ میں آ گئی۔ روشنی کم تھی مگر اس کی اڑی اڑی رنگت اور کھلی زلفیں رات کا جو افسانہ سنا رہی تھی وہ میں بخوبی جان گیا تھا۔ جان گرے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ مغرور حسیناؤں کا سر چکانا اسے اچھی طرح آتا ہے۔ جینا کے لبوں پر جھیپی ہوئی مفتو سی مسکراہٹ تھی۔ میں انگڑائی لے کر اٹھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے لیکن باہر روشنی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ طوفان کا زور کم ہوا تھا مگر سرمئی بادل ماحول کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ بھوک ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے شکرکندی کچی کھانے کی کوشش کی لیکن کھائی نہیں کی۔ جان گرے بولا، اب روشنی کرنے میں حرج نہیں ہے، اگر انہوں نے آنا ہوتا تو آ چکے ہوتے۔ اس کا بقیہ جملہ منہ میں ہی رہ گیا۔ ایک کھڑکی کے تمام شیشے بیک وقت ٹوٹ گئے، گولیاں کبھی دیوار میں سوراخ کرتی نکل گئیں۔ میں اور جان گرے بیک وقت زمین پر گرے۔ چینا پہلے ہی فرش پر دراز تھی، میری رائفل میرے پاس تھی اور جان گرے کی میز پر رکھی تھی۔ وہ رینگتا ہوا اسے اٹھانے چاہ رہا تھا، اسی لمحے باہر سے جیسے محاذ کھل گیا تھا۔ کئی خودکار ہتھیاروں نے منہ کھول دیے تھے۔ جینا چیخیں مار رہی تھی۔ میں نے چلا کر کہا، زمین سے اٹھنا مت۔ گولیاں دیواروں سے گزر کر محض فٹ بھر کی اونچائی سے جا رہی تھی۔ میں نے جان گرے سے پوچھا، کبھی راستے سے نکلا جا سکتا ہے؟ پیچھے تو دریا ہے، بہرحال دریا میں بچنے کے چانسز ہیں، انہوں نے کبھی حصہ خالی نہیں چھوڑا ہوگا۔ جان گرے نے خدشہ ظاہر کیا، ہم مارے جائیں گے۔ چینا چلائی، خدا کے لیے ہتھیار پھینک دو۔ کیا ہمیں مارنے ہی آئے ہیں؟ میں نے اسے آگاہ کیا، کسی خوش فہمی میں مت رہنا، اب یہ تمہیں بھی مار دیں گے کیونکہ تم دشمن کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ تب یہاں سے نکلو۔ وہ بلبلائی، کیا موت کا انتظار کر رہے ہو؟ اکبی دروازے سے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، اگرچہ اس طرح سے فائرنگ نہیں ہو رہی تھی لیکن یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ کم سامنے کی فائرنگ سے بدحواس ہو کر اکبی حصے سے نکلنے کی کوشش کریں اور وہاں پہلے سے گھات میں موجود قاتل ہمیں فوت کرتے، مگر زیادہ دیر یہاں رکنا بھی ممکن نہیں تھا۔ گولیاں بعض اوقات تو ہمارے جسموں سے انچ بھر اوپر سے گزر رہی تھیں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے گولیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اٹھ کر دریا کے سمت والے حصے میں فرش کے تختوں پر رائفل سے برسٹ مارنے شروع کر دیے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ جان گرے نے اٹھنے کی کوشش کی۔ چپ چاپ پڑے رہو، میں نے غرا کر کہا۔ اس لیے جان گرے کے منہ سے کراہ نکلی تھی اور اس نے اپنی ٹانگ تھام لی تھی۔ اسے گولی لگی تھی لیکن وقت اسے دیکھنے کا نہیں تھا۔ میں نے چینچ چوڑے تختے پر 2-2 فٹ کے فاصلے سے لائن میں برسٹ مارے، گولیاں ان میں سوراخ کرتی گزر گئیں۔ دوسرے میگزین نے تختوں کو اس حد تک کمزور کر دیا تھا کہ جب میں نے جوتا مارا تو وہ اکھڑ کر نیچے جا گرے۔ میں نے نیچے دیکھا، ہلکی سی روشنی میں کچھ 6 فٹ نیچے زمین نظر آئی۔ میں نیچے کود گیا۔ اس طرف آؤ تم دونوں۔ میں نیچے نہیں آ سکتا، میرے پاؤں میں گولی لگی ہے، جان گرے نے کرہا کر کہا۔ چینا یہ سنتے ہی لپک کر آئی تھی، اسے میں نے سنبھال لیا۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا ورنہ اندھا دھند فائرنگ میں ماری جاؤ گی، میں نے تیز لہجے میں کہا اور واپس کلا میں سے کیبن میں داخل ہو گیا۔
जानगरे पहलू के बल गिरा था। उसे बाजू से थाम कर मैंने पीछे खींचा और उसे खला से नीचे उतार दिया। जानगरे किसी कदर कोशिश के बावजूद खड़ा हो गया था। इसका मतलब था कि उसके पांव की हड्डी सलामत थी। मैं नीचे आया तो जीना ने सरगोशी की। मुझे दरिया के किनारे 2-3 अफराद नजर आए हैं। मेरी राइफल ले लो, इस पर रात को देखने वाली दूरबीन है। जानगरे ने अपनी राइफल मेरी तरफ बढ़ा दी। अपनी राइफल इसे देखकर मैंने साहिल की तरफ देखा। दूरबीन से 4 सब्ज रंग के हेवले नजर आए थे। वो जमीन पर दराज थे और जाहिर है हमारे मुंतजिर थे। मैंने एक का निशाना लेकर फायर किया और वो तड़प कर उछला। इससे पहले कि उसका साथी संभल था, मैंने उसे भी शूट कर दिया। दूसरा तो फौरन ही साकित हो गया था। इसके मरने में कोई शुबा नहीं था। इसके सर के वाइजर के टुकड़े उड़ते नजर आए थे। अलबत्ता दूसरा तड़प रहा था। इन्हें छोड़कर मैंने बाकी 2 अफराद की तरफ दूरबीन घुमाई तो उन्हें अपनी जगह से गायब पाया। इधर उधर तलाश करने पर वो मुझे दाएं तरफ भागते नजर आए। अपने साथियों के अंजाम से बाखबर होने के बाद उन्होंने वहां रुकने की हमाकत नहीं की थी। निकलो यहां से, अच्छा मौका है। वो भाग गए हैं, मैंने जानगरे से कहा। वो अपनी रान पर रुमाल बांध रहा था। मैं चल सकूंगा लेकिन भागना मुमकिन नहीं है, वो बोला। तुम चलो तो सही, मैंने उसका बाजू थाम लिया। इससे पहले कि वो कैबिन ही को उड़ा दें, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। मैं जानगरे को दाएं तरफ से सहारा दिए बाहर निकला। सर्द मौसम की वजह से जानगरे अपने जख्म में इतनी तकलीफ महसूस नहीं कर रहा था। उसने अपनी राइफल बाएं शाने पर टांग रखी थी। जिना जरा फासले पर बेपरवाही से चल रही थी तो उसने जानगरे को सहारा देने की कोशिश नहीं की थी। मैंने दरिया का रुख किया था क्योंकि किसी और तरफ जाना खतरनाक हो सकता था। यह बात भी यकीनी थी कि भागने वाले कुछ देर बाद ज्यादा कुमक लेकर आएंगे। दरिया का पाट मुश्किल से 40 गज चौड़ा था और इसकी सतह पर बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे। हमें इस दरिया को अबूर करना था। चीना ने साफ इनकार कर दिया। पर इतने सर्द पानी में जाने का सोच भी नहीं सकती। तब तुम यहीं रुककर मौत का इंतजार करो, मैंने कहा और जानगरे समेत पानी की तरफ बढ़ा। यूसुफ एक बार फिर सोच लो, पानी बहुत सर्द है। जानगरे की आवाज लड़ रही थी। हम इससे ही मर जाएंगे। जानगरे, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं चूहों की तरह मर नहीं सकता। जद्दोजहद करते हुए मौत आए तो मुझे हंसी खुशी कबूल है। इसीलिए मैं दाएं तरफ से मुसल्लह अफराद नमूदार हुए। वो फायरिंग कर रहे थे मगर हम उनकी इज्जत से बाहर थे। मैं भी चलूंगा, जानगरे ने फौरी फैसला किया और हम एक साथ पानी में कूद गए। एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे मेरा जिस्म ही गायब हो गया हो। इस कदर सर्द पानी था मगर मैंने रुकने के बजाय हाथ पांव चलाना शुरू कर दिए। जानगरे भी तैरने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे भी सहारा दिया। हमारे पास 10 किलोग्राम वजनी असलहे का बोझ भी था। इसके साथ आम हालात में तैरना भी मुश्किल काम था, चाहे के इस बर्फीले दरिया में तैरना। मुझे लग रहा था कि मैंने एक लम्हे के लिए भी हाथ पांव रोके तो उन्हें दोबारा हरकत नहीं दे सकूंगा। जानगरे कराहने लगा, अब मुझसे नहीं तैरा जा रहा है। हौसला करो, हम निस्फ फासला तय कर चुके हैं, मैंने उसे तसल्ली दी। बस थोड़ा और रह गया है। चिना हमारे पानी में कूदने के बाद चंद लम्हे तजब्जब में खड़ी रही, फिर एक दम आने वाले मुसल्ला अफराद की तरफ थोड़ी। वो हाथ हिलाते हुए मदद मदद चिल्ला रही थी मगर उन्होंने इस पर भी फायरिंग कर दी। वो बाल बाल बची थी। गोलियां उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे से हर जगह से गुजर रही थी मगर उसे नहीं लगी। वो एक लम्हे तो शश्तर रह गई। यह मुमकिन नहीं था कि इन्होंने इसे शनाख्त न किया हो, इसके बावजूद इस पर फायर कर रहे थे। किस्मत ना होती तो अब तक दरिया के रेत पर इसकी लाश पड़ी होती। वो पलटकर भागी और बेख्तियार दरिया में कूद गई। इस वक्त मुझे अपनी और जानगरे की फिक्र लगी थी। इस पर तवज्जो कहाँ देता, ये सब उसने मुझे बाद में बताया। मैं नहीं जा सकता, मैं मर रहा हूं, जानगरे ने फरियाद की। मेरा जिस्म शल हो गया है। वो तो मेरा भी हो गया है, मैंने दांत बिजाते हुए कहा, लेकिन रुके तो डूब जाएंगे। जानगरे ने तैरने की कोशिश तर्क कर दी थी और इसका बोझ भी मुझे उठाना पड़ रहा था। एक लम्हे को मेरे दिल में आई कि इस पर लानत भेज कर अपनी जान बचाने की कोशिश करूं, लेकिन फिर मुझे उस पर रहम आ गया। खुशकिस्मती से इसी लम्हे मेरे पैरों ने जमीन महसूस कर ली थी और अब मैं निस्बतन आसानी से किनारे तक इसे ले जा सकता था। चलने में बाद हम रेत पर थे, लेकिन अभी जानगरे की जद्दोजहद खत्म नहीं हुई थी। हमारी जान के गाहक किसी वक्त भी दरिया के दूसरे किनारे तक आ सकते थे, जो वहां से सिर्फ 40 गज के फासले पर था, और इतने फासले से हमें गोलियों से भूनने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं पेश आती। उठो, अब चलने की कोशिश करो, तुम्हारे दोस्त करीब आ रहे हैं। मैंने जानगरे को झंझोड़ा। वो सर्दी से बुरी तरह लर्ज रहा था। खुद मेरी हालत भी अच्छी नहीं थी। जानगरे मुश्किल से उठा। इस रान पर गोली लगने की तकलीफ शायद याद भी नहीं रही थी, इसके बजाय उसे सर्द पानी ने मार दिया था। इसी लम्हे अकब से जीना की चिल्लाने की आवाज आई, रुको, मुझे छोड़कर मत जाना। ये कुतिया यहां भी? जानगरे ने गुर्राने की कोशिश की। चांद के खौफ से जीना ने सर्द पानी को खातिर में लाते हुए हैरत अंगेज फुर्ती से दरिया अबूर किया था। वैसे भी इस पर कोई बोझ नहीं था सिवाय ओवरकोट के, और वो तैराकी में माहिर भी थी। रेत पर आती उसने लपक कर जानगरे का बाजू दूसरी तरफ से पकड़ा। अब चलो,
इससे पहले वो किनारे तक आ जाएं। इस किस्म के मौसम में हरकत में ही बरकत थी, इसलिए हम फिर चल पड़े। चल क्या पड़े, शराबियों की तरह टोल रहे थे। कदम रखते कहीं थे और पड़ते कहीं थे। चांदगरे मुझ पर और जीना पर लदा था। मैंने उसे खबरदार किया, अगर तुमने अपने पैरों पर चलने की कोशिश नहीं की तो तुम्हें इस जगह फेंक जाएंगे। ये मुसीबत तुम्हारी वजह से यूसुफ के पीछे लगी है। जीना ने मेरी तायद की। और तुम जैसे बहुत मासूम हो। चांदगरे इस हालत में भी जवाब देने से बाज नहीं आया था। मुखबरी किसने की थी? वो मेरा फर्ज था, मगर मुझे क्या मालूम था कि यह हरामजादे मां के बाद मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं अकब से गोलियां चली जो हमारे ऊपर खासी बुलंदी से गुजर गई। हमलावर दरिया के किनारे तक आ गए थे और अब हमें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। पहली आड़ मुयस्सर आते ही मैंने पलट कर जवाबी प्रश्न मारा और वो लोग किनारे से भागे, क्योंकि इस तरफ कोई आड़ नहीं थी। यहाँ रेत का छोटा सा टीला था। चांदगरे और जीना इसके अकब में थे। जैसे ही हमलावर किनारे से दूर हुए, मैंने चांदगरे को खड़ा कर दिया और हम किनारे से जरा फासले पर वाके झाड़ियों की तरफ भागे। पानी से बाहर आने पर सर्दी तो बहुत लगी थी, लेकिन साथ ही जिस्म में चुस्ती भी आ गई थी। हमें भागते देखकर हमलावर एक बार फिर दरिया के किनारे आने लगे। वो हमें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे और हम जैसे जैसे दरिया से दूर जा रहे थे, इनकी जद से बाहर होते जा रहे थे। अचानक मुझे अपनी पीठ पर बाएं जानिब पसलियों से जरा ऊपर कोई दहकता अंगारा घुसता महसूस हुआ। मैं लड़खड़ा गया था। चांदगरे को अपना होश नहीं था, लेकिन जेना ने मेरी लड़खड़ाहट महसूस कर ली थी। इसने बेताबी से कहा, क्या हुआ? शायद पुश्त में गोली लगी है। मैंने तकलीफ बर्दाश्त करते हुए कहा। मेरे खुदा, उसके मुंह से निकला। चांदगरे ने सर उठाया था मगर कुछ कहा नहीं। झाड़ियों तक पहुंचते पहुंचते मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। चांदगरे को लिटाकर मैं जमीन पर बैठ गया। तकलीफ की वजह से मेरे लिए सांस लेना भी मुहाल हुआ जा रहा था। चीना ने मेरी पुश्त पर देखा। खून बह रहा है। गोली ही लगी है। ये दिल के मकाम पर है। चीना के लहजे में तशवीश थी। देखो, अगर कोई गोली नजदीक है तो उसे चाकू से निकालने की कोशिश करो। मैंने उसे ये भी चाकू दिया। बराह करम इसे मेरी पुश्त में मत घोंप देना। उसने जैकेट उतारने में मेरी मदद की और जर्सी ऊपर की तो उसके मुंह से तहय्युर अंगेज आवाज निकल गई। मेरे खुदा, ये गोली तो बिल्कुल ऊपर रखी है। ये लो, इतनी आराम से निकल आई। बस जरा सी खाल फट गई है। 1 मिनट रुको। उसने जमीन से बर्फ उठाकर जख्म पर रखी कि खून बहना बंद हो जाए। 1 मिनट बाद उसने जर्सी नीचे कर दी और मुझे शीशे की चिपटी हो जाने वाली गोली थमा दी। गोली हटते ही तकलीफ भी हैरान कुन तेजी से कम हुई थी और मैं खासा बेहतर महसूस करने लगा था। जैकेट और जर्सी बल्कि सारे ही कपड़े भीग गए थे, लेकिन इन्हें उतारने से ज्यादा सर्दी लग रही थी। मैंने जीना से चाकू लिया। तुम्हें राइफल चलानी आती है? जाहिर है मैं जिन लोगों से ताल्लुक रखती हूँ, इनका ओढ़ना बेचोना ही हथियार है। मैं हथियारों से कैसे नावाकिफ हो सकती हूँ? मैंने जानगरे वाली राइफल उसे थमा दी। दरिया की तरफ देखो और इनमें से कोई दरिया अबूर करने की कोशिश करे तो उसे शूट कर देना। फिक्र न करो, इनमें से कोई इतना जुर्रतमंद नहीं है। ये सिर्फ कमजोरों पर शेर हो जाने वाले लोग हैं। लेकिन अगर किसी ने हमाकत की तो मैं इसे देख लूंगी। जीना के लहजे में एतमाद था। मैंने जानगरे को सीधा किया। वो सरगोशी में रहा। तुमने हमाकत की है, मैं सिर्फ इसे आजमा रहा हूं, मैंने खुश्क लहजे में कहा और उसकी रान से बंधे रुमाल को खोलने लगा। गोली खासी अंदर तक थी। मैंने उंगली सुराख में डाली तो जानगरे ने चिल्लाकर गाली दी थी। गोली कोई इंच भर की गहराई में थी। अगर मेरे पास चिमटी होती तो मैं बासानी इसे निकाल सकता था, मगर इस चाकू से जख्म बड़ा करके ही यह काम किया जा सकता था। मैंने इसकी नोक सुराख पर रखकर तब आई तो जानगरे तड़प गया था। उसने एक अदद फलक शगाफ चीख मारी, यूसुफ ये क्या कर रहा है तू? मैंने उसे दबा लिया और बेरहमी से चाकू उसके जख्म में डाल दिया। मेरी गिरफ्त में वो हिल नहीं सकता था, इसलिए बाकी जिस्म से तड़पता और गालियां देता रहा। मैंने चाकू की नोक से गोली निकाली तो उसने एक फलक शगाफ चीख मारी और चुप हो गया। मैंने जमीन से बर्फ उठाकर उसके जख्म में भरी। कई दफा बर्फ भरने से उसका खून रुक गया। मैंने ज्यादा बर्फ लगाने से गुरेज किया कि कहीं इसका जख्म गैंग्रीन का शिकार न हो जाए। खून रुक जाने पर मैंने रुमाल दोबारा उसके जख्म पर बांध दिया था। जानगरे का चेहरा इस मौसम में भी पसीने से तर था। अब अच्छा महसूस हो रहा है, वरना जब तक गोली अंदर थी मुझे लग रहा था जैसे कोई अंगारा अंदर मौजूद है। अब उठ जाओ, वो ज्यादा देर दरिया के दूसरी तरफ नहीं रहेंगे, हमें यहां से निकलना होगा। जीना दौड़ती हुई आई। वो लोग रबर की कश्ती ला रहे हैं, बस 1 मिनट में इस तरफ होंगे। मैंने मुतफक्किर नजरों से जानगरे की तरफ देखा। गोली निकालने से उसे आराम जरूर मिला था, लेकिन इस हालत में हम इस जगह से ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। हमारे ताक़ुब में जो शिकारी कुत्ते थे वो ताज़ा दम थे। इस बात का पूरा इम्कान था कि वो हमें पकड़ लेंगे। बर्फबारी और हवा के रुक जाने के बाद बर्फ पर हमारे कदमों के निशान तादेर ताज़ा रह सकते थे और इन पर वो बआसानी हमारा ताक़ुब कर सकते थे। कश्ती का सुनकर मेरे ज़हन में सरसराहट सी हुई थी।
अचानक उसकी वजह भी नसूल कर दी गई। इस जगह से फरार के लिए हमें किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत थी और कश्ती की मदद से हम बआसानी यहाँ से दूर जा सकते थे। जिन्हों ने मेरे तासुरात से भांप लिया था कि नामुमकिन है वो 5-6 हैं। हम ऐसे 5-6 से कई बार निमट चुके हैं। मैं लापरवाही से जवाब दिया और जरा आगे जाकर झाड़ियों से झांका। वो लोग दूसरे किनारे पर रबर की कश्ती को पैग से निकाल रहे थे। इसमें इंजन भी लगा था। हालांकि इतना सा दरिया अबूर करने के लिए चप्पू काफी थे। शायद इनके पास से चप्पू नहीं थे। एक ने गैस सिलेंडर की चाबी खींची तो मुश्किल से 3 सेकंड में कश्ती में हवा भर गई। ये खासी बड़ी कश्ती थी, तकरीबन 7 बाई 4 फुट की। इसके अक्कम में छोटा सा पेट्रोल इंजन था। एक ने इंजन की डोरी खींचकर इसे स्टार्ट किया। मैं तेजी से वापस आया। तैयार हो जाओ चांदगरे, तुम इसी जगह से फायर करोगे। जीना तुम दाएं तरफ जाओ, मैं बाएं तरफ चाहता हूं। जैसे ही मैं फायर करूं तुम दोनों भी फायर कर देना, कोई भी बच कर जाने ना पाए। याद रखना हमें कश्ती चाहिए, इसलिए इसे बचाकर फायर करना, वरना इस जद्दोजहद का मकसद फोत हो जाएगा। बमा हमारे। ओके बास, जेना ने कहा और दाएं तरफ चली गई। मैं चांदगरे को सहारा देकर झाड़ियों के आखिरी हिस्से तक लाया जहां से दरिया का किनारा नजर आ रहा था। मोटरबोट की आवाज बता रही थी कि वो लोग इस किनारे की तरफ आ रहे हैं। मैं राइफल चांदगरे को देकर खुद पिस्तौल समेत बाएं तरफ चला गया। यहां से किनारा किसी कदर नजदीक था। मुझे उम्मीद थी कि पिस्तौल इतने फासले से बखूबी काम करेगा। वो लोग किनारे से जरा दूर थे। 4 आगे राइफलें ताने मुस्तैद बैठे थे। 5वां कश्ती चला रहा था। जैसे ही कश्ती किनारे लगी वो चारों कूद कर रेत पर ऊंधे मुंह लेट गए। अब इनके जिस्म मामूली से नजर आ रहे थे। 5वां फौरी तौर पर कश्ती वापस ले गया था। मैं दांत पीस कर रह गया। वो लोग मेरे अंदाजे से ज्यादा चालाक साबित हुए थे। ये बात उनके जहन में भी थी कि मैं उल्टा उनकी कश्ती लेकर न भाग निकलूं। वो चारों खासी देर तक साकत पड़े रहे। मैं दुआ कर रहा था कि मेरे साथी कोई हमाकत न कर जाए। वो 4 थे, पूरी तरह मुसल्ला और तरबियत याफ्ता, और अगर इन्हें हमारे बारे में भनक भी मिल जाती तो ये झाड़ियां हमें नहीं बचा सकती थी। अचानक इनमें से एक उठकर भागा और जीना ने उस पर पूरा ब्रश चला दिया। वो लौटकर अपने साथियों के पास जा गिरा। इसका जिस्म छलनी होकर रह गया था। इसके साथ ही बाकी 3 ने जीना की तरफ बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी थी। चांदगरे या मैंने फायरिंग करने से गुरेज किया था। मैं जिस बात से डर रहा था वो ही हुआ था। इन लोगों की निस्बत हम गैर महफूज थे। मुझे दस्ती बम का ख्याल आया। मौजूदा हालात में इससे बेहतर हथियार और कोई नहीं हो सकता था। मैंने एक बम निकालकर इसकी पिन खींची। यह आमतौर से 5 सेकंड बाद फटता था, इसलिए मैंने 4 तक गिनकर बम इन लोगों की तरफ उछाल दिया। बम गिरते ही फटा था। मैं सर नीचे कर चुका था। इनकी चीखें धमाके में दब गई थी। जैसे ही गूंज खत्म हुई मैं पिस्तौल लेकर उस तरफ दौड़ा और मरते मरते बचा। मैं कश्ती वाले को भूल गया था। उसने दूसरे किनारे से मुझ पर फायरिंग की थी। 3 में से 2 खत्म हो चुके थे और तीसरा बुरी तरह जख्मी था। मैंने जमीन पर गिरते हुए एक मरने वाले की राइफल उठा ली और कश्ती वाले की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। वो मुझ पर और मैं उस पर फायरिंग कर रहा था, मगर हम दोनों की किस्मत अच्छी थी। हमारी राइफलें खाली हुई तो पिस्तौल निकाल लिए। मैं उठकर किनारे की तरफ दौड़ा और वो भी जोश में पानी में उतर आया था। मैंने उसका निशाना लेकर ट्रैगर पर दबाव डालना शुरू कर दिया। 2 गोलियां मेरे सर से गुजरी और मेरी एक गोली उसके बाजू में लगी। उसने मेरा बाजू थाम लिया। दूसरे हाथ से उसने पिस्तौल संभालने की कोशिश की, मगर दूसरी गोली सीने पर लगने से उसकी हिम्मत जवाब देगी और वो ऊंधे मुंह पानी में गिर गया। रवा पानी उसे बहा कर ले जाने लगा। न जाने कब जीना और जानगरे मेरे हक में आ गए। जब जानगरे ने जानकुनी में फंसे शख्स को गोली मारकर तकलीफ से निजात दिलाई तो मैं चौंका था। कश्ती तो अब भी दूसरे किनारे पर है। मैं मुस्कुराया। जब हम इस किनारे से उस तरफ आ सकते हैं तो इस तरफ भी जा सकते हैं। तुम इन लोगों का असलहा और जैकेटें उतार लो। मैंने अपनी जैकेट उतार कर फेंक दी और दौड़कर दरिया में छलांग लगा दी। मैं कोई 5-6 गज आगे गिरा और जल्दी जल्दी यख बस्ता पानी में हाथ पांव चलाता दूसरी तरफ जाने लगा। पहले तजर्बे के मुकाबले में पानी इस कदर सद नहीं लग रहा था। मैं चंद मिनट में दूसरी तरफ जा पहुंचा। कश्ती रेत से टिकी खड़ी थी। मैंने डोरी खींचकर इसका इंजन स्टार्ट किया और इसे दूसरे किनारे की तरफ लाने लगा। इस दौरान में जीना और जानगरे ने मरने वालों का असलहा जमा कर लिया था। इनकी खुश्क जैकेटें उतार ली थी, लेकिन इन सब पर खून लगा था, जिसे जीना ने पानी से साफ करने की कोशिश की थी। पहले जीना ने एक छोटे कद के मकतूल की पतलून पहनी। जब हमने उसकी तरफ देखा तो बेख्तियार हंस दिए। ये पतलून भी खासी बड़ी थी और फूली फूली सी हो रही थी। मैंने और जानगरे ने लिबास बदले। इस दौरान में जीना मुंह फेर कर खड़ी रही थी। 4 अदर राइफलें और खासी मिकदार में एमुनेशन हमारे हाथ लगा था। इससे पहले वो और आए, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। जीना बोली, इनके पास से खाने को कुछ निकला है? मैंने पूछा। ये सब निकला है। जीना ने मेरे सामने एक ढेर डाल दिया। इसमें सिगरेट, लाइटर, चॉकलेट, टॉफियां, च्युइंगम और इस तरह की कई चीजें थी। ये सब उठाकर कश्ती में डालो
जब तक खाने को कुछ न मिले इनसे दिल बहलाएं कि मैंने कहा। सामान रखकर हम खुद भी कश्ती में सवार हुए। चांदगरे ने इंजन संभाल लिया था, जिसने सबसे पहले पेट्रोल की मिकदार चेक की। खासा कम है, इसके सारे कश्ती 1 घंटा भी नहीं चल सकती। फिल वक्त यहां से निकलो, आगे चलकर इंजन बंद कर देना, दरिया में खासी रवानी है। हमारे पास चप्पू नहीं है, चांदगरे ने कश्ती को आगे बढ़ाते हुए कहा। कश्ती कैसे काबू करेंगे?